Good evening, ladies and gentlemen, boys and girls. Welcome to Jahaneman. And nowadays, we are celebrating Women's Day. Jahaneman has dedicated one full month program for the women, for their greatness, for their contribution, and for their efforts to make this world a better place. Every day, this is our endeavor to invite an eminent woman, a woman of substance, and we give them the opportunity to share their thoughts and experiences on our theme. Theme for our Women's Day special program is Fashion Your Emotion or Emotional Fashion. Isn't it very unique? Yes, the people say this is very unique. And that's what Jahaneman believes in, that we have to think differently, we have to act creatively, and we have to take unique themes. मुझे याद है कि बचपन से मैंने ये सुना है कि दो बातों के लिए औरतों को बहुत बदनाम किया जाता है. एक तो उनके टॉकेटिव होने के लिए. आपने ये जोक सुना होगा कि दो औरतें एक साथ बैठी थी और वो खामोशी थी वहां पे, और फिर जब भी लोग ऐसा कहेंगे तो सभी कहेंगे हाउ इट्स पॉसिबल. मुझे बहुत बुरा लगता है जब ऐसा कहा जाता है. और दूसरी बात कि जब दो औरतें बैठी होंगी तो ये यकीनी बात है कि वो जरूर कहेंगी, ये चुन्नी कहाँ से खरीदी, तुम्हारी अंगूठी बहुत प्रिटी है, कौन से सुनार की दुकान से है. I also feel very bad when these type of things are associated with women. तो आइए आज के एक्सपर्ट से हम बात करते हैं कि वो क्या सोचती हैं इमोशनल फैशन के बारे में. लेट मी इनवाइट मिस पूजा धवन टू द शो and I welcome from the bottom of my heart Miss Pooja Dhawan, who is the coordinator of pre-primary section of DPS. Pooja, hello, how are you? Hello, ma'am. Happy Teddy Day. Oh, so cute, so nice, Pooja. Thank you very much. It's so lovely. Thank you, ma'am. It's for you. Same to I you, cannot same give to you. you, but it's face to face. I can give you the virtually. Okay, Pooja, so welcome to our special show on Women of Substance. We are celebrating Women's Day for full month. We have started from 8th of February and we'll go till 7th of March. And 7th March, we are going to have a symposium and we are going to award all the women of substance on that day. Thank you, ma'am. It's a good initiative, actually. So, Pooja, please introduce yourself and let our viewers know about you, because you are very special, I know, and you have lots of talents. But you yourself, please tell about you, because I'm confused what to say, what not to say. Good evening, ma'am. Thank you so much for inviting me your show. I always love Jahaneman. And now I would like to tell me something about myself. My name is Pooja Dhawan and I'm from Punjab. I'm a pre-primary coordinator in DPS. And I always inspired my grandmother because I was, from my birth, I was staying with her only. She was a nurse in a military hospital. So whenever she was wake up early in the morning, she always wearing suit and then कोट जो डॉक्टर्स वाला होता है, एंड आई फील गुड क्योंकि शुरू से उनको देखा करते हुए, तो आई ऑलवेज वांट कि कुछ करना है जिंदगी में, मुझे घर पे नहीं बैठना. जैसे कुछ लड़कियां, हर एक लड़की का अपना सपना होता है, किसी का होता है कि शादी करके हाउसवाइफ बनना है, बट मुझे ये था कि मुझे शादी नहीं करनी, पहले मुझे करियर पे कंसंट्रेट करना है. और मुझे भी तैयार होके रोज जाना है, कोट पहन के अच्छे से, बैच लगा के, जैसे मुझे स्माइली का बैच पसंद है हर रोज मैं लगा के भी जाती हूँ स्कूल में. और बच्चों को भी आई गिफ्ट कि हाँ, हमेशा वी हैव टू बी स्माइल ऑन आवर फेस, और कोई भी टेंशन हो हमें कभी भी अपने फेस पे नहीं आने देनी चाहिए, चाहे हम कितने भी परेशान हो या कुछ भी हो. सो दिस इज माई लिटिल बिट इंट्रोडक्शन. Pooja, you have started your channel as well, YouTube channel for the kids. Will you please elaborate on that? I inspired from you only, ma'am. You are the one, you are the mentor. Last from 5 years, I am watching you. I am watching you in your school, Dubai, DPS, and I always want to work with you, but unfortunately, we were not able to. But it's okay. जब
जिंदगी में चाहा था मिलना हमें कोविड में, तो भगवान ने हमें कोविड में मिला दिया। बिल्कुल, ये कोविड का एक बहुत अच्छा तोहफा है कि पूजा मुझे मिली, जी। इज़न्ट इट? मुझे भी आप मिले। तो गॉड गिफ्ट। मैम, चैनल है जो स्पेशली मैंने डिज़ाइन किया है आपसे इंस्पायर होके, बच्चों के लिए है स्पेशली। उसमें टीचर्स का नहीं है उसमें, अभी मैंने सिर्फ बच्चों के लिए किया है कि बच्चों के लिए कुछ, कई बार पेरेंट्स को ऐसा होता है उनको पता नहीं होता कि हमें कैसे स्किल्स बच्चे को, हमें 2 to 5 इयर्स के बच्चे को कैसे स्किल्स देनी है। उसमें मैंने एक आवर मिनी लाइब्रेरी रखा है, क्योंकि आप भी वो अब बुक विद डेट विद अ बुक करती हैं, तो आई थॉट मैं बच्चों का कुछ ऐसा करूँ कि बच्चों की बुक्स का पेरेंट्स को बताऊँ कि ये बुक्स बच्चों के लिए अच्छी है। और उसमें कुछ बच्चों के इंटरव्यूज़ है उनकी, कि बच्चों का पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स अच्छा हो। और एक क्लास में है कि आई वांट कि बच्चों को एक्सपेरिमेंट्स, जो बच्चे स्कूल में नहीं कर पाते कई बार, तो वो अपनी जो भी हिडन टैलेंट है वो निकल के बाहर आए। तो अभी मैंने बहुत बस अच्छा, इतना वेरी कुछ गुड, सेट किया है। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम। Yes, and Pooja, since our topic is emotional fashion and fashion your emotion, and I know that you are a very stylish girl and you always believe in nicely dressing up and look beautiful. तो आपका क्या ख्याल है इस बारे में, आप ये बताएं। पहले तो ये बताएं कि क्या इमोशंस का फैशन से कोई ताल्लुक है, हमारी ड्रेसिंग से क्या इमोशंस का कोई ताल्लुक है, और अगर है तो फिर वो क्या ताल्लुक है, उससे हमारी पर्सनालिटी पे कितना असर पड़ता है। ओके मैम, इमोशंस का हमारे ड्रेसिंग के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा ताल्लुक है, क्योंकि कहा जाता है कि हमारी पर्सनैलिटी, जो रिसर्चर्स, मैंने भी कुछ पढ़ा था उसमें था, रिसर्चर्स कहते हैं कि जैसा हम पहनते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस आता है। अगर हम लोग, अब जैसे ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, अब मैं भी अगर नाइट सूट में बैठ जाऊँ या नॉर्मली ऐसे ही बैठ जाऊँ, तो वो मुझे एक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा पढ़ाई का। बट अगर मैं अच्छे से ड्रेसअप होकर बैठूँ तो मुझे फील नहीं होता है कि मैं स्कूल में नहीं हूँ। आई फील यस आई एम इन क्लास। तो ये एक फ़र्क पड़ता है, जब आप एक ड्रेसिंग अच्छी करते हो तो आपको कॉन्फिडेंस आता है आप में। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि ड्रेसिंग के साथ इसका कनेक्शन है। ओके, थैंक यू वेरी मच। और ये बताएं कि जो औरतों के बारे में आमतौर पे मशहूर है कि वो मतलब कपड़े, फैशन, एक्सेसरीज, ज्वेलरीज, इन सब के लिए कुछ ज़्यादा ही उनके अंदर पैशन होता है। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है और आपका पैशन किस हद तक है? मैम, व्हेन आई वाज़ इन कॉलेज, दैट टाइम तो मुझे इतना नॉलेज नहीं था। मैं देखती थी जैसे हमारी टीचर्स होती थी, तो वो साड़ी पहन के आती थी, उसी टाइप ऑफ की एक्सेसरीज पहनती थी, गले में कुछ और कानों में। मुझे वैसे इतना शौक नहीं था। बट हाँ, जब मैं खुद टीचिंग में आई और मैंने देखा मेरी कोऑर्डिनेटर, मेरी प्रिंसिपल मैम, दे आल्सो लव टू वेयर, और अच्छा लगता था देख के कि हाँ। और मुझे भी ऐसा होता था कि मुझे भी, मेरे को साड़ी पहननी है और कोऑर्डिनेटर बनना है। शायद मैं साड़ी के लिए कोऑर्डिनेटर बनी हूँ। आई थिंक। आपने पूजा अच्छा है बताया, क्योंकि मैं जो अगर टीचर बनी हूँ ना, तो इसके पीछे भी यही हिस्ट्री है कि जब मैं कुछ दिनों तक वहाँ अपने होम टाउन में थी, दरभंगा में, तो मेरे घर के खिड़की से पीछे एक बहुत बड़ा मैदान था, वो नजर आता था। तो उस मैदान में मैं देखती थी कि कुछ जो वहां पे स्लम एरिया था, झोपड़ी झुग्गी वगैरह थी, गरीब लोग थे। तो एक मैडम व्हाइट साड़ी विद रेड बॉर्डर, जो कि टिपिकल आपने देखा होगा बंगाली साड़ी हालांकि हाँ, कही जाती है, बंगाली, हाँ लेकिन हाँ जी। वो उधर बिहार में भी पहनते हैं और हम लोग भी बहुत शौक से पहनते हैं। तो वो व्हाइट जी। साड़ी विद रेड बॉर्डर पहन के, और ऐसे यहाँ पे एक पिन लगा करके उसको, और फिर एक छतरी लेकर के वो मैडम खड़ी होती थी वहां पे, और उनके साथ 2-3 स्टाफ होते थे, वर्कर्स, जो खिचड़ी बांटते थे बच्चों को, गरीबों को, वहां पे जो भी स्लम में ओके। लोग थे। तो उसका हर दिन का ये रूटीन था और मैं खिड़की से देख करके उनको इतना अच्छा फील करती थी। मैं कहती थी कि काश मैं भी ऐसे ही एक दिन साड़ी बांध के और छतरी लेके, और मैं ऐसे ही मतलब स्लम में जा करके लोगों के लिए काम करूं और बच्चों हेल्प के अंदर करूँ। बांटूं। और बच्चे सब दौड़ के उनके पास आते थे, अरे क्योंकि वो बाप रे! ज्यादा खाना बांट रही है भूखे बच्चों को, तो सभी अट्रैक्ट होंगे उनकी तरफ। तो मेरे जहन में यही था कि मैं भी एक दिन ऐसे ही बनूंगी। तो चलिए, खुदा का शुक्र है कि वैसे व्हाइट साड़ी विद रेड बॉर्डर तो मैंने पहन ली। वो छतरी का जो है ना, वो ख्वाब ख्वाब रह गया अभी तक। कोई बात नहीं, वो भी पूरा कर लेंगे हम। एनजीओ अपना अपना एनजीओ खोलेंगे और फिर भी विल हेल्प। ये श्योर। ठीक है ना मैम? तो पूजा, तो आप मतलब कि आप बिलीव करती हैं कि एक अच्छी ड्रेसिंग इंसान के कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है? यस मैम, बिल्कुल। इवन मैम, जैसे अब अभी कोविड में क्या हुआ कि हम लोग थोड़ा-सा घर बैठ-बैठ के एग्ज़ॉस्ट हो गए, स्कूल नहीं चल रहा है या जो भी किसी की भी जॉब है, तो हम लोग एक्सरसाइज़ तो नहीं कर रहे हैं। जैसे पहले हमारा रूटीन था या वॉक करते थे, तो
हम लोग नहीं कर रहे क्योंकि हम सारा दिन उसी उसी में रहते हैं, या कुछ लोग तो ऐसे जो शायद तैयार भी नहीं होते। हम टीचर्स एटलीस्ट तैयार तो होते हैं कि हमें तैयार होना है, हमें बच्चों के लिए करना है, 3 घंटे क्लास है। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे एक्सरसाइज के लिए स्पेशली रिसर्च में भी कहा गया है कि अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो जिम के कपड़े पहनो, मतलब ट्राउजर टी शर्ट। आपके अंदर खुद ही होगा कि मैं योगा करूं या मैं एक्सरसाइज करूं, कि क्योंकि आपको वो एक खुलापन मिल जाएगा कि हाँ अकॉर्डिंग टू द जो उसका है एक्सरसाइज से रिलेटेड। तो वो भी आई थिंक कि हमें कपड़े जब हम पहनते हैं तो उस टाइप का हमारा बिहेवियर भी होता है और हमारी थिंकिंग भी चेंज होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पूजा, आप ये बताएं कि इस वुमेन्स डे के लिए आपकी क्या प्रिपरेशंस हैं और आपके क्या एस्पिरेशंस हैं और आपके क्या रेजोल्यूशंस हैं? मैम बहुत सारे हैं। मैंने एक्चुअली आई वांट टू शो यू समथिंग। This is my board. In the COVID time, I started. Every day I am written the date because we are not going school. We are missing school, so I'm writing every day thought of the day and whatever I wanna do every day. I'm writing here. So today's resolution for the Women's Day, I write: believe in yourself. ओके, All women have to believe in themselves and they गुड। have to love themselves. जब तक हम खुद से प्यार नहीं करेंगे हम किसी और से प्यार नहीं कर सकते। नहीं कर So we सकते। have to, yes, we have to believe in ourselves. The second point is promote yourself because we are doing our talk show and other things. So yes, we have to promote ourselves. Why? When we are doing something, we have to show them. We have to show the people. Yes, we are doing something. So promote yourself. And third one is learn to say no. Sometime relations में, not in a particular school or something, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को ना नहीं बोल पाते। हमारी किसी की नेचर ऐसी होती है ना, वो हर एक को कहते हैं अच्छा नहीं भी मन हो रहा है तो अंदर से कि ठीक है आई विल डू इट, बट आपका मन नहीं है। तो मुझे लगता है हमें जो भी काम करना चाहिए मन से करना चाहिए। जब हम मन से करते हैं ना किसी के लिए कुछ, तो वो अच्छा ही होता है, चाहे वो खाना बनाना क्यों ना हो। So you have to say learn to say no. The fourth one is I wanna join NGO, especially for the women. क्योंकि अभी आपको भी पता है कि दुनिया में बहुत कुछ गलत हो रहा है गर्ल्स के साथ। So I want to help those women. So I wanna join NGO. And the fifth one is I mean promote education. बिकॉज कोविड की वजह से बहुत सारे पेरेंट्स को ये लगता है कि किंडरगार्टन स्टूडेंट्स को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है एंड दे डोंट वांट टू कम। सो प्रमोट एजुकेशन, दे हैव टू नो वैल्यू ऑफ एजुकेशन। एंड देन रेजिंग वॉइस अगेंस्ट रॉन्ग। कुछ गलत हो तो आपको बोलना चाहिए, चाहे वो स्कूल हो चाहे कहीं पे भी हो। आपको गलत, जो गलत है वो गलत है एंड यू हैव, वी हैव राइट टू से समथिंग। एंड द लास्ट वन इज be digital teacher and be smart teacher, not the hard working teacher, because now it's time to be digi teacher. We have to learn all the things related to the online. So these are my resolutions. Wonderful, wonderful, Pooja. Very good. And how nicely you have jotted down that. I liked the spirit in you. So thank you very much, Pooja. You have given your valuable time. And you are the woman of substance. Jahaniman has selected you. And I invite you that you please be a part of our celebrations on 7th May. And I request all the women, whoever is watching this program, that we are going to have a gala event on 7th March to dedicate the day for the women, women's contributions, women's greatness, and to all the women of substance. Because अगर औरतें हैं तो ही दुनिया है, तभी दुनिया में रौनक है, और अगर औरतें नहीं हैं तो दुनिया का वजूद ही नहीं है, फिर रौनक की बात तो दूर की रही। तो आप सब रखें अपना बहुत ढेर सारा ख्याल। इंशाल्लाह आपसे फिर कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू वेरी मच पूजा, एंड थैंक यू एवरीवन। Thank you, ma'am. Love you so much.